Assalamu alaikum everyone. Thank you for coming today. The topic of this training session is related to financial literacy. So the basic purpose of conducting this training is that I and some of my other colleagues, Dr. Shafiq, Dr. Uzma, Dr. Sabir, Sir Imad, had attended another session at IOBM, which was held by SECP, Securities Exchange Commission of Pakistan, in close collaboration with Sindh HSC last month at IOBM on 29th May to be exact. So we were asked to deliver the learnings from that training session among our faculty and staff. So that training session was basically the purpose of that particular training session was to make the faculty of higher education institutions financially literate, so that they can convey that knowledge to their students. Because as you know that the economy of Pakistan is a consumption oriented society. हम जितना भी कमाते हैं वो सब कंज्यूम कर लेते हैं, which is one of the purpose of behind high inflation in our country. ठीक है, तो financial literacy का मतलब है that whatever I am earning, I am intelligent and literate enough to use those finances intelligently and economically, so that I am also able to save some money rather than just consume whatever I am earning. So because this session has more to do with finances, probably किसी को ये बहुत dry topic लगे, but on individual level, believe me, it's very beneficial to understand that how we earn, how we save that money, whatever we earn, and how can we invest that money for better financial decision making. So in order to understand finances, हमें सबसे पहले दो important concepts को समझना होता है. First is saving and the other is investment. What do you think are savings? हम save क्यों करते हैं या save करना क्यों important है? For emergency situations. Good. And? For the betterment of life, for the improvement of life. Saving का main purpose यही है कि for example, if I meet any unforeseen circumstances, what is the cushion I am going to fall back upon? क्या ऐसी चीज़ होगी जो मुझे in times of crisis जो है वो support करेगी? इसलिए ज़रूरी है that whatever I am earning, I am not just consuming it, I am also saving a small portion of it. ठीक है? Investment क्या होती है on the other hand? Whenever we talk about savings, we also talk about investment. Investment में save तो आपने for example अगर आप 50,000 कमा रहे हैं, उसमें से आपने 10,000 सेव करके रख लिए कि if XYZ God forbid goes wrong, I will depend on these 10,000. ये 10,000 मेरी हेल्प आउट करेंगे to come out of that crisis. मगर इन्वेस्टमेंट क्या है? that you put those savings जो आपने 10,000 अपने 50,000 की इनकम में से अलग किए थे, you keep that 10,000 at a place where it can add up to and give more money, so that when you are in that particular emergency situation, so you have more than 10,000 which you initially kept. ठीक है? So that is investment. Whenever we talk about savings, मेरे पास सैलरी आती है, मैं उसको कंज्यूम कर लेती हूँ. I do not save anything. ठीक है? मैं सेव क्यों नहीं कर पाती? Because I feel कि अगर मेरी let's say for example सैलरी 50 है, तो मुझे ज़रूरत भी चीज़ों की 50,000 ही की है. अगर मेरी सैलरी 80 हो जाती है तो मुझे लगेगा मुझे जो चीज़ों की ज़रूरत है वो 80,000 ही की चीज़ों की ज़रूरत है. एंड once I have fulfilled all my needs and wants, I will then think about savings. Once all my needs and wants are fulfilled, अब मैं सोचूंगी कि अब मैंने पैसे सेव करने, और इसलिए मैं सेविंग नहीं कर पाती. There are two things, needs and wants. कुछ लोग familiar होंगे between the difference between the two. Others might not know कि needs और wants क्या होती हैं. Needs वो चीज़ है जो which are the basis of your survival. Necessities, जिनके बगैर हम नहीं रह सकते. तो basic चीज़ें आ जाती हैं food, water, clothing. And wants वो हैं which add up to these needs and make them a luxury. ठीक है? हाँ. पानी water is a need. मगर मैंने नेस्ले ही का पानी पीना है या एक्वाफीना ही का पानी पीना है, दैट इज़ माई वॉन्ट. ठीक है? तो
जब भी हम सेविंग की बात करते हैं तो वन रूल दैट अप्लाइज टू सेविंग्स इज 80-20 रूल, which all of us should remember in our day-to-day lives. Once you get your salary credited into your accounts, make an aim of saving 20% first. 1 लाख सैलरी है, उसका 20% पहले सेव करें. सेव आप कैसे कर सकते हैं? अभी बिल्कुल नॉर्मल उसमें ट्रांसफ़र इट टू अनदर अकाउंट. दैट्स व्हाट आई डू. मैंने वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, मैं उसको फिर नहीं देखती. एंड यू विल सी आफ्टर एन ईयर वो 20,000 जो आपने ओवर द टाइम पीरियड वहाँ पे सेव किए होंगे वो एडअप हो जाएंगे टू मच मोर अमाउंट दैट यू आर सेविंग ईच मंथ. तो 80-20 रूल सेज कि आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 20% यू हैव टू सेव फर्स्ट एंड देन द 80% विल गो फॉर कंजम्पशन. तो 1 लाख में से आपने 20,000 सेव कर लिए एंड नाउ यू हैव 80,000 टू लेफ्ट फॉर कंजम्पशन. ठीक है. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग क्या करती है? हमें ग्रोथ देती है इन द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी हैव सेव्ड. Two important things that are concerned with that relate to our investment decisions is risk and return. Higher the risk, higher the return. आप जितनी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा. जितनी कम रिस्की होगी इन्वेस्टमेंट उतना कम रिटर्न होगा. तो जितने ज़्यादा आप ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, उसी हिसाब से आपको आपका रिटर्न भी मिलेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एंड लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न ऑब्वियसली. ओके, सो अब हमने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की तो बात कर ली. एन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इन्फ्लेशन. ईच डे वी टॉक अबाउट महंगाई. ठीक है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत हो रही है. वॉट महंगाई और इन्फ्लेशन एक्चुअली इज? एनीवन? मीसम को पता होगा. हाँ, rise in prices. Rise in the prices due to the demand of the things. और वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो इन्फ्लेशन हमें कॉज करती है वो होती है रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर. हमें किसी चीज़ की प्राइस क्यों ज़्यादा लगती है? बिकॉज वी कांट अफोर्ड इट. इफ़ आई कैन अफोर्ड इट तो मुझे उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं लगेगी. सो इन्फ्लेशन बेसिकली इज़ द रिडक्शन इन परचेजिंग पावर. प्राइसेस persistent और जनरल इंक्रीज इन द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक इकोनॉमी के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब की कीमत बढ़ जाती है एंड जनरली बढ़ती है. ठीक है, मतलब किसी फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ इस टिश्यू बॉक्स की प्राइस बढ़ गई, मैं इन्फ्लेशन नहीं कहूँगी, तो जनरल होगी और परसिस्टेंट होगी, उसका एक ट्रेंड होगा जो वो फॉलो करेगी. दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन. एंड ऑब्वियसली इन्फ्लेशन फिर क्या कर देती है? हमारी परचेजिंग पावर रिड्यूस कर देती है. अब इन्फ्लेशन के साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एनी आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? The worth of money changes every, like, I would say even every second at this stage. हाँ, time value of the concept of time value of money says that whatever money I have today is more than the money that I will have tomorrow. हमारे सारे बड़े जो हैं, हमारे सारे बड़ों से हमने कहते सुना होगा कि उनके ज़माने में 10 रुपये में पता नहीं क्या क्या आ जाता था. ठीक है, वो 10 रुपये जो उनके पास उस दिन थे, हमारे बचपन में थे, वही 10 रुपये आज हमारे पास भी हैं. बट वॉट कैन वी बाई इन 10 रुपीज़? नथिंग. दिस इज़ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. येस, वन फ्रेश अप. ठीक है, आज भी मेरी और मिस ईशा की सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन यही थी कि हमारे कैफेटेरिया में एक फ्रेश अप कॉस्ट्स 10 रुपीज़. ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कहता है कि वट एवर मनी आई हैव टुडे इज़ मोर देन द मनी दैट आई विल हैव टुमारो. अच्छा, अब इसमें एक और चीज़, दो कॉन्सेप्ट्स जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंप्राइज करते हैं. एक है कंपाउंडिंग और एक है डिस्काउंटिंग. जो पैसा मैं आज कमा रही हूँ दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, और जो पैसा मैं कल कमाऊंगी या जिस पैसे की मैं वैल्यू आगे जाके देखूंगी दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू. ठीक है,
तो जब मैं ये देखना चाहूँगी कि जो पैसे मैं आज कमा रही हूँ फ्यूचर वैल्यू उसकी कितनी होगी, तो मैं अपने इंटरेस्ट रेट को कंपाउंड करूँगी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, कि मेरे पैसे उसमें एड अप होते रहेंगे। एंड व्हेन इफ़ आई हैव द वैल्यू, फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऑफ़र करता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट करें एंड आफ्टर 10 years, लेट्स से 1 लाख की आप आज इन्वेस्टमेंट करें और या एक पर्टिकुलर अमाउंट की आप आज इन्वेस्टमेंट करें एंड आफ्टर 10 years यू विल हैव 10 लाख रुपए। तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैं आज कितनी इन्वेस्टमेंट करूँगी जो 10 lakhs बन जाएंगे आफ्टर 10 years। तो मैं फ्यूचर वैल्यू से जब प्रेजेंट वैल्यू पे आऊँगी तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ नहीं, कंपाउंडिंग इज व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू। तो मेरा इंटरेस्ट एड अप हो रहा है, हाँ समथिंग लाइक दैट। तो मेरा इंटरेस्ट एड अप होता रह रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं वापस जा रही हूँ फ्यूचर वैल्यू पे आके मैं प्रेजेंट वैल्यू का देखूंगी तो उस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग, क्योंकि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिडक्ट होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, वी हैव अ स्मॉल फार्मूला ओवर हियर जिसको हम ग्रोथ का फार्मूला कहते हैं, इट्स कॉल्ड ग्रोथ फार्मूला। फ्यूचर वैल्यू, FV स्टैंड्स फॉर फ्यूचर वैल्यू, इक्वल्स टू PV विच इज प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस I इज द इंटरेस्ट रेट, डिवाइडेड बाय N। N मीन्स कि 1 साल के अंदर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर आपके पास लिखा है कि आपको एनुअली रिटर्न मिल रहा है, दैट मीन्स साल में एक दफ़ा रिटर्न मिल रहा है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कहती है यू विल गेट अ रिटर्न बाय एनुअली, दैट मीन्स आपको 2 दफ़ा मिल रहा है। अगर वो कहती है क्वार्टरली तो उस हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, हर क्वार्टर के हिसाब से मिल रहा है। सो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस I इज़ द रेट डिवाइडेड बाय N, नंबर ऑफ टाइम्स जब आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। एनुअली हो रहा है तो 1 दफ़ा कंपाउंड होगा, बाय एनुअली हो रहा है 2 दफ़ा कंपाउंड होगा, और फिर सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। इसको हम इस पे पावर ले लेंगे नंबर ऑफ टाइम्स जो वो कंपाउंड हो रहा है और कितने साल के लिए कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक फार्मूला। इसी फार्मूला में से अच्छा ये है कि मुझसे कोई कहे कि आपकी आज की इन्वेस्टमेंट कल को कितना वो करेगी, तो मैंने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रही हूँ तो वो भी मैं इसी फार्मूला में से ड्राइव कर सकती हूँ, ठीक है। अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, वो इससे क्लैरिफाई करते हैं। सो कंपाउंडेड इंटरेस्ट मीन्स वेल्थ बिल्ड्स ओवर टाइम थ्रू कंपाउंडिंग। कुछ बहुत ज़्यादा वो हो गया, मैथमेटिकल हो गया सर। हाँ आप तो जा सकते, ओके। सर्टिफिकेट मेरा मिला हुआ। अच्छा, थोड़ा सा अब एक सवाल करते हैं इनसे। जी सर। थोड़ा सा असल में कंपाउंडिंग जो है ना वो क्या है? हाँ सर चलिए, थैंक यू। तो ये मैथमेटिक्स का बहुत आसान है कि आप जैसे मैं कमा रहा हूँ, मैंने बैंक में रखा हुआ है, लेकिन मैं उससे विड्रॉ नहीं कर रहा। 100 पे मिल गया मुझे 110 रुपये, फिर दोबारा मैंने 110 रुपये को बढ़ा के उसका 10% मिलेगा, फिर उसका हाँ फार्मूला जो है ना, मतलब वो ठीक है। से बढ़े आगे, चलें आगे बढ़ें। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन क्या कहती है कि जब भी मैं अपना पैसा सेव करूं या इन्वेस्ट करूं तो मैं उसको किसी एक जगह पे सेव या इन्वेस्ट ना कर दूं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवर्सिफिकेशन इज दैट नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। उससे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल इफ इट एनी storm or any natural disaster or any stock market issue hits the market, तो आपकी सारी finances डूब जाएंगे, ठीक है। So the concept of diversification says that whenever you make investment decisions, तो सिर्फ एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है, there are multiple options in which you can invest in. So now what each one of you thinks के are better investment options? अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ करना चाहेंगे? गोल्ड एंड
गोल्ड, बिटकॉइन, गोल्ड है नेशनल Gold. बैंक के फंड्स होते हैं जिसमें आप हाँ हाँ Bonds सही। हैं, सो दे एग्जैक्टली। तो अब अगर मैं ये करूँ कि मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं और मैं सारी सेविंग्स का गोल्ड लेके रख लूँ, रादर कि मैं उसको डिवाइड करूँ अमंग डिफरेंट एसेट्स या स्टॉक्स जहाँ पर मैं उससे सेव करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ। अब अगर मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया और गोल्ड की प्राइसेस ड्रॉप कर गई तो मेरी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स भी उसी हिसाब से मूव कर जाएंगी। बट इफ़ आई इन्वेस्ट हाफ ऑफ माई मनी इन गोल्ड एंड हाफ ऑफ इट इन लेट्स से बिटकॉइन और गोल्ड की प्राइसेस गिरती हैं तो आई विल हैव माई मनी इन द क्रिप्टो सेफ, रिस्क डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवर्सिफिकेशन सेज कि आपने अपने रिस्क को डिवाइड करना है, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी है जहाँ पर आपका हायर रिस्क और हायर रिटर्न हो, और कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी है जहाँ लोअर रिस्क और लोअर रिटर्न। अच्छा, अब जब व्हेन यू विल गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन यू विल हैव दीज 4 इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस जो आपके पास अवेलेबल होती हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स। फर्स्ट, इक्विटीज़ या स्टॉक्स, जो हम नॉर्मल शेयर्स ख़रीद रहे होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनको हम बोलते हैं इक्विटीज़। फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स आते हैं, फिर ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी आते हैं इसके अंदर। कैश या कैश इक्विवेलेंस, इसके अंदर आपका गोल्ड वगैरह आ जाएगा बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी लिक्विड। या फिर ऑल्टरनेटिव्स आप क्रिप्टो में कर लें, रियल स्टेट में कर लें, ये सब भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स ही काउंट होती हैं। अच्छा, वी हैव 3 काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। टिपिकली 2 होते हैं और एक वो होते हैं जो टेन्योर बेस्ड गोल्स पे काम करते हैं। सो नाउ इफ़ यू वांट टू क्लासीफाई योर सेल्फ कि आप रिस्क टेकर हैं या रिस्क अवर्स हैं। इन्वेस्टर्स हमेशा 2 टाइप के होते हैं, रिस्क टेकर एंड रिस्क अवर्स। रिस्क टेकर कौन होते हैं? जो हायर रिस्क पे काम करते हैं। ठीक है। जब हायर रिस्क होगा दैट मीन्स कि अल्टीमेटली उनको उसी हिसाब से हायर रिटर्न भी मिलेगा। और रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कम रिस्क लेते हैं और उसके हिसाब से उनको लो रिस्क ही मिलता है। सो वेन एवर यू मेक एन इन्वेस्टमेंट यू आर बेसिकली डिवाइडिंग बेस्ड ऑन, यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड अपॉन योर रिस्क एपिटाइट। वी कॉल दिस रिस्क एपिटाइट, कि कौन से इन्वेस्टर की कितनी रिस्क एपिटाइट है। अगर आपकी रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है मीन्स आप ज़्यादा रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, यू आर रिस्क टॉलरेंट। ठीक है, और अ रिस्क टेकर। और अगर आप अपनी रिस्क को एपिटाइट को कम रखते हैं देन यू आर रिस्क अवर्स, यू अवॉइड रिस्क्स। ठीक है। और फिर ऑब्वियसली इफ़ यू आर अवॉइडिंग रिस्क तो आपका रिटर्न भी उस पर कम मिलता है आपको। थर्ड कैटेगरी आती है टेन्योर बेस्ड गोल्स की। अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रही हूँ, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विल बी माई रिस्क एपिटाइट? अगर शॉर्ट टर्म के लिए मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए रिस्क या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल है मेरा। अगर लॉन्ग टर्म है तो आई हैव अ वाइड नंबर ऑफ ईयर्स जहाँ पे मैं अपना रिस्क डिवाइड कर सकती हूँ। सो आई बी रिस्क टेकर और रिस्क टॉलरेंट इन दैट सिचुएशन। और अगर मीडियम टर्म है तो फिर मैं बेस्ड ऑन द एसेट क्लास देखूंगी कि जनरल ट्रेंड मार्केट का क्या रहा है और मुझे कितना रिस्क मैं टॉलरेट कर सकती हूँ और करना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि हम जैसे लोग, ठीक है, बिकॉज वी बिलोंग टू द प्राइवेट इनकम क्लास। ठीक है, हमारे पास रिटायरमेंट की कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब रिटायरमेंट, फॉर एग्जांपल व्हेन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गेट देयर रिटायरमेंट्स तो उनको कुछ रिटायरमेंट फ़ंड मिलता है। ठीक है, जो उनकी पूरी ज़िंदगी की यू कैन से एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती है जो उन्होंने ओवर टाइम उनको मिली होती है। या कुछ मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज में पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड, कि वंस आप की सैलरी से हर मंथ कुछ डिडक्शन होती है। ठीक है, एंड द कंपनी यू आर वर्किंग फॉर इज़ ऑल्सो मेकिंग सर्टन काइंड ऑफ डिडक्शन, सर्टन काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट फंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी में से 2% डिडक्ट हो रहा है तो आपकी सैलरी का ही 2% वो कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर रही है टू योर पीएफ। दैट्स कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, सो वंस यू लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन और यू रिटायर फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, आपको वो सारे पैसे मिल जाते हैं, वो पीएफ होता है। अब प्राइवेट
एम्प्लॉयज़ के पास नॉर्मली ये ऑप्शन नहीं होता। तो हम फिर क्या करते हैं, स्कीम्स आती हैं वॉलेंट्री पेंशन स्कीम्स। आप इनके पास जाएं, ठीक है, आपने MCB आरिफ हबीब ग्रुप का नाम सुना होगा, एटलस मैनेजमेंट का नाम सुना होगा, HBL एसेट मैनेजमेंट का नाम सुना होगा। ऑल दीज आर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हु ऑफर VPS, वॉलेंट्री पेंशन स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, जैसे PF आपकी कंपनी आपके पास मेंटेन कर रही होती है, VPS एक थर्ड पार्टी मेंटेन कर रही होती है, जो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है। आप मंथली इनके पास अपना कुछ जो भी आपकी सेविंग्स हैं उनका पोर्शन आप इनके पास लैंड करवा देते हैं, और ये आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पाइल अप करती रहती हैं या प्रॉफिट पाइल अप करती रहती हैं। अगर कन्वेंशनल की तरफ है तो ऑब्वियसली वो आपको इंटरेस्ट पे करेंगी, अगर शरिया बेस्ड है तो फिर आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। वो करके जब आप रिटायर होने लगेंगे, यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट दीज सेविंग्स ऑफ योर्स, जो आपने ओवर टाइम इनके पास रखवाई होंगी। समझ आ रहा है? ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली है, लेकिन जिनको नॉलेज है इसके बारे में, EOBI हो गया, ये जितनी आपकी मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, या दे आर रिलायबल। इसका बस डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको हर वक्त नहीं निकाल सकते अपनी अमाउंट जो है। देयर इज़ अ सर्टन पोर्शन ऑफ इट ओनली जो आप इससे आप विड्रॉ कर सकते हैं। यू कांट विड्रॉ ऑल ऑफ इट। जब मैं 60 की हो जाऊंगी फिर इसको विड्रॉ कर सकती हूँ ऑल ऑफ इट, अगर हो गई तो। क्या? उससे पहले अगर डेथ हो जाती है तो वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। जिसको आप नेक्स्ट ऑफ किन जो है वो आपका वो कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। सही है, अगर डेथ हो गई ना, नहीं, अगर ड्यूरिंग सर्विस ही डेथ हो गई 60 से पे पहुंचने से पहले, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, फिर एक ऑप्शन जो है वो म्यूचुअल फंड्स का है। म्यूचुअल फंड्स कंपनीज क्या होती हैं, कुछ आइडिया है म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? हाँ, फॉर एग्जांपल मैं एसेट मैनेजर हूँ, ठीक है, मैंने आप सबसे म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, आप सबने इन्वेस्ट किया और मैं आपकी एसेट मैनेजर हूँ। मैंने आप सबसे इन्वेस्टमेंट्स लेके एक जगह पार्क कर दी, ठीक है। अब मैं, क्योंकि आई बिलीव इन डाइवर्सिफिकेशन एज एन एसेट मैनेजर, तो मैं उसको एक स्टॉक या एक इक्विटी के अंदर नहीं पाइल अप कर दूंगी। मैं आपके बिहाफ पे उसको इन्वेस्ट करूंगी इन डिफरेंट फंड्स। कहीं कुछ पोर्शन उसका गोल्ड में करूंगी, कुछ रियल स्टेट में करूंगी, कुछ कहीं करूंगी, कुछ कहीं करूंगी, कुछ स्टॉक्स डिफरेंट कंपनीज के करूंगी, और फिर उससे जो इनकम आएगी वो मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दूंगी। सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो रेगुलेटेड हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। क्या? अच्छा, म्यूचुअल फंड ये होता है, एक एसेट मैनेजर है आपका, ठीक है। ये एसेट मैनेजर्स आपकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं ना, उन्हीं के पास होते हैं। आप उनके पास गए, मेरे पास आया, आप लेट्स से मैं हूँ, ठीक है, और आपने कहा मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। सो लाइक यू, आई ऑल्सो हैव दीज इन्वेस्टर्स, ये सब मेरे इन्वेस्टर्स हैं मेरे पास, ठीक है। इनके पास 20,000 है, आपके पास 30,000 है, उसके पास 40,000 है, XYZ। मैंने सबसे फ़ंड्स लिए हैं, वो फ़ंड्स मेरे हो गए। अब मैंने उन फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवर्सिफिकेशन। मेरे पास टोटल 1 लाख फंड्स आ गए, 1 लाख रुपए आ गए, ठीक है। मैंने उस 1 लाख को, कुछ को गोल्ड में इन्वेस्ट किया, कुछ की रियल स्टेट ख़रीद ली, कुछ की गाड़ियाँ ख़रीद ली, कुछ के शेयर्स ख़रीद लिए डिफरेंट कंपनीज़ में, और उनको बैलेंस कर दिया, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो को, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन, इस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दिया। अब जो इसमें से अर्निंग्स आएंगी वो मैं आप में बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव एग्जैक्टली व्हाट इन्वेस्टमेंट्स यू हैव गिवन मी, बेस्ड ऑन दैट प्रोपोर्शन मैं आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। यस, एग्जैक्टली, आज समझे। अब समझ आया घर क्यों नहीं आते टाइम से, ठीक है। तो it's regulated by SECP and nowadays it is one of the most commonly used investment platform.
सबसे आसानी से और सबसे एफिशिएंटली जो आज इन्वेस्टमेंट का या सेविंग्स का तरीका है वो आपका म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। एडवांटेजेस इसके क्या है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? हाँ, How quickly your assets turn liquid as हाँ, हाउ ईजिली यू कैन कन्वर्ट योर, उसने अभी पढ़ा है ना उसके टेस्ट के लिए, हाउ ईजिली यू कैन कन्वर्ट योर एसेट्स इनटू कैश, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चेयर है, ये ग्रेनिच का एसेट है, ठीक है। मैं इसको मार्केट में लेके जाती हूँ और सेल करती हूँ तो मेरे पास कैश आ जाता है, ठीक है, ये इसकी लिक्विडिटी है। लेकिन मैं कोई ऐसी चीज़ मार्केट में लेके जाऊँ सेल करने के लिए जिसकी मुझे पेमेंट कैश में वापस ना मिल सके, तो वो कम लिक्विड एसेट है, ठीक है। तो जितने एसेट्स लिक्विड होते हैं, मतलब ईजिली कन्वर्टेड टू कैश होते हैं, वो उतने ज़्यादा ईजिली मैनेजेबल होते हैं। लारे कुछ कह रही हो? क्या इसका? ओके, सारी मेहनत को जो है ना पानी कर दिया, ओके। और डिसएडवांटेजेस हैं मार्केट रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, उसका मैंने आपको वो भी पहले बताया था कि आपने सेविंग करनी कैसे है, 80-20 वाला। वो करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे। क्या? तो आप क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ कर रही हो? नहीं तो आप उसको रख के भूल जाए ना। भूलना, इफ़ यू वांट टू सेव, तो भूलना आपकी वो है कि मेरे पास ये पैसे हैं, एंड बिलीव मी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वही पैसे निकल कर आते हैं। नहीं, आप उधर थे नहीं सतला, हाँ आप उस वक्त थे नहीं। हमने ये डिस्कस किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि आपकी जो भी सैलरी है उस पर 80-20 रूल अप्लाई करें, ठीक है। अब मैं कोट नहीं करना चाह रही आपकी सैलरी, लेकिन नहीं, सपोज करें मुझे, हाँ, लेकिन पहले 20 सेव करें, इस कोशिश यहाँ इन्वेस्ट करें। जब आपको लगे कि आपकी सेविंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वो इन्वेस्ट हो सकती है, तो फिर वो यहाँ इन्वेस्ट करें। एक महीना आता है भी निकल जाता है। आधा लेक्चर मिस कर दिया, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। एनी क्वेश्चंस? कुछ ना समझ आया? उनको तो कुछ भी नहीं आया समझ में, उसके अलावा तलहा को अर्निंग्स डिवर्सिफिकेशन से इम्प्रूव होंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट वाली अर्निंग पे जा रही है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो एक ऐसा, वही बता रही हूँ ना, आप एक सोलो इनकम से इतना कुछ नहीं कर सकते, हाँ। एंड प्रोवाइडेड अब जो कंपटीशन लेवल है इंडस्ट्री में, तो आप किसी एक उस पर अपनी इनकम स्ट्रीम को फिक्स नहीं कर सकते। यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर इनकम स्ट्रीम एज वेल। उसके लिए आप फ्रीलांसिंग करें या कुछ भी करें, आप जब तक अपनी इनकम स्ट्रीम नहीं बढ़ाएंगे, आप सेविंग के कॉन्सेप्ट या इन्वेस्टमेंट तक नहीं जा सकते। तो इसमें हमारा इन्फ्लेशन का ही एक मैटर आता है। हाँ, ऑब्वियसली। और इन्फ्लेशन को थोड़ा और इलैबोरेट अगर आप कर सकें हमारे लिए, क्योंकि ठीक है। 10 रुपये जो आपने एग्जांपल दी थी कि 10 रुपये हमारे पेरेंट्स यूज़ करते थे, वही 10 रुपये आज हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बिग डिफरेंस है इनके बीच में। और ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा होता है? क्योंकि हम एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद हम आज भी चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। हम इसलिए चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन है हमारे पास, ठीक है, हम कॉटन को उसकी रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं। हम उस पर कोई काम नहीं करते कि उसको एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएं। हम जब अपने रॉ मटेरियल पे को वैल्यू ऐड करके नहीं बेचेंगे तो आपकी चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो compete नहीं कर सकती। बाकी कंट्रीज़ जो हमारे साथ की हैं, बांग्लादेश, इंडिया, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो जब तक आप अपने प्रोडक्ट पे वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, उस पर मेहनत नहीं करेंगे, वो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं compete नहीं हो सकती। और आपके हालात यही रहेंगे जो अभी हैं। नहीं सर, इंशाल्लाह बेहतर होंगे। ये असल में कॉन्सेप्ट है बिहाइंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर आई डू एग्री विद यू, लेकिन जिस सोसाइटी में हम बैठे हुए हैं, आपकी माइक्रो मैनेजमेंट और आप जिस
बैकग्राउंड से आप मुझे हाईलाइट कर रहे हैं, हम सब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम SECP का अगर रेफरेंस आ रहा है, क्या डू वी बिलीव इन SECP? सबसे पहला सवाल ये आता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, मैडम ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, आज से 10 साल पहले या आज से 3 साल पहले हमारे यूनिट्स कितने रेट्स के ऊपर हमें इलेक्ट्रिसिटी के मिल रहे थे, आज उसमें हमें क्या चीज़ मिल रही है, इसमें इन्फ्लेशन का क्या किरदार रहा, इसमें क्या एक इंडिविजुअल का किरदार रहा या इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का किरदार हमारे सामने आता है। तो ये चीज़ें, क्योंकि मैं एक लर्नर के तरीके से मैं इन्फ्लेशन को समझना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। सर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही होता है कि आपकी प्राइसेस जो हैं चीज़ों की बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि मैं अब, क्योंकि प्राइस बढ़ गई तो आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारी हाँ, इसके लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाऊँ डिमांड एंड सप्लाई का, देखें जिन चीज़ों की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होती है ना, उसकी प्राइस कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मार्केट में ब्रेड लेने गई, ठीक है, नाउ ब्रेड इज़ अ कमोडिटी विच इज़ रेडिली अवेलेबल, मुझे एक बेकरी से नहीं मिलेगी, दूसरी से मिल जाएगी, दूसरी से नहीं, तीसरी से मिल जाएगी, तो उसकी प्राइस भी कंट्रोल्ड रहती है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो मार्केट में बहुत कम लेवल में मौजूद है, जिसकी सप्लाई बहुत कम है, तो उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा हाई होगी। अब हम जो है, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि हम एज ए सोसाइटी कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी हैं, हम जितना कमाते हैं उतना लगा देते हैं, ठीक है। अब आप सबकी, कुछ लोगों की ये पहली जॉब होगी, मेजॉरिटी ऑफ लोग पहले कहीं काम करके आ चुके हैं, आपकी पहली सैलरी कितनी थी, उससे तो ज़्यादा ही है ना जो यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। लेकिन आप नोट करें अगर, तो जो आपकी पहली सैलरी थी आपके उसमें ख़र्चे कम थे, लेकिन जितना आप अब कमा रहे हैं उसमें आपके ख़र्चे ज़्यादा हैं। एंड इंशाल्लाह व्हेन यू विल स्विच अनदर जॉब वेयर यू विल अर्न मोर देन यू आर अर्निंग राइट नाउ, तो उधर आपके ख़र्चे और ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ आवर कल्चर कि हम जितना कमाते हैं हम उतना कंज्यूम कर लेते हैं, और जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती रहती है। आज के दौर में तो ये हो रहा है कि जितना आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, आपकी नीड्स एंड वांट्स उससे कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, उसका बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ा हाथ है आपके कल्चर का, आपकी सोसाइटी का। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहाँ सब 1000 गज के घर में रहते हैं, तो आई विल नॉट चूज़ टू लिव इन एन अपार्टमेंट, मुझे भी वही घर चाहिए, क्योंकि ये हमारी मेंटालिटी हो गई है दैट वी हैव टू कम्पीट। और अगर आप हमारे पेरेंट्स के दौर में देखें तो उनके अंदर ये वाली बहस नहीं थी कि मैंने कम्पीट करना है अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से या अपने सोशल सर्कल में। लेकिन क्योंकि अब हमारे ये कल्चरल और मतलब सोशो इकोनॉमिक शिफ्ट है, इट्स नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स और अबाउट फाइनेंस, इसमें हमारे कल्चर का भी बहुत बड़ा रोल है। एंड उसके अलावा हमारी जो हमारी इकॉनमी में बहुत बड़े बड़े नोट सर्कुलेट करते हैं। एक इकॉनमी के अंदर जितना बड़ा नोट सर्कुलेट करता है उतनी इन्फ्लेशन होती है उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्यों होती है? सर डॉक्टर शफीक बैठे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डॉक्टर शफीक की तो बात ही नहीं सुन रहे। सर बिल्कुल सुनना चाहेंगे सर पर्सनल, आई एम जस्ट आर्गिंग, आई एम जस्ट सीरियस अबाउट दिस थिंग, डोंट बी पर्सनल सर। नहीं कहाँ आई डू बिलीव, या मैं कह रहा हूँ मेरी बात करो दूसरी। नहीं, आपकी अगर आपका रेफरेंस वो दे रही है तो आप एड्रेस कर दो, इस बात की मैं सुनता हूँ। अच्छा सर, मैं ये हाँ बताएं। नहीं आप करें। अच्छा, मैं ये बताई थी कि अगर सपोज़ करें मेरे पास 5000 का नोट है, ठीक है, 5000 का मेरे पास नोट है और आपके पास 1000 के 5 नोट हैं, ठीक है। मैं मार्केट जाऊं और मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए जिसकी कीमत लेट से 4500 है, ठीक है, तो मैं अपना 5000 का नोट निकालूंगी और 4500 की वो चीज़ परचेज़ कर लूँगी। आप जाएं मार्केट और आप वही 4500 की आपको चीज़ पसंद आए, आपको अपनी जेब से 4000 के नोट निकालने पड़ेंगे और एक 50 का नोट निकालना पड़ेगा, 500 का नोट निकालना पड़ेगा, तो आप वो चीज़ ख़रीदेंगे। तो आपको इन्फ्लेशन का एहसास होगा, क्योंकि आपने अपनी जेब से बार बार नोट निकाले और मैंने एक नोट निकाल के दिया और वो चीज़ ख़रीद ली। एग्जैक्टली, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मनी है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में जितना बड़ा नोट सर्कुलेट करेगा उसमें उतनी इन्फ्लेशन होगी, बिकॉज उतनी ज़्यादा कंजम्पशन ओरिएंटेड वो सोसाइटी हो जाएगी, और जितने ज़्यादा आप हाथ खींच के खर्च करेंगे जिसको हम कहते हैं, उतनी ज़्यादा प्राइस उस
चीज़ों की कम हो जाएगी। ठीक है, अब आई होप कि मैंने इन्फ्लेशन को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। डॉक्टर शफीक कुछ ऐड करना चाहेंगे? यार वो बड़ा असल में मैक्रो लेवल का जो है ना सर, बाद में एक और ये भी करूँ कि आज से पहले म्यूचुअल फंड्स की आज हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। आज से 5 साल पहले हम मुदारबा की बात कर रहे थे, उससे पहले हम किसी और उसकी बात कर रहे थे, और ये फिर मुदारबा में फिर जो हमें जिस तरीके की गैप किया जो हमें असल में छोटी सी चीज़ है, ये तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है ना, म्यूचुअल फंड और 1 लाख 2 लाख। दुनिया में पूरी दुनिया का बता रहा हूँ, इस वक्त जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग बिहेव करते हैं या वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में करते हैं, इस तरह की है बहुत सारी। और हमारे यहाँ जो है आजकल इस तरह जो गवर्नमेंट जैसे पोल्ट्री है, ठीक है, आपका पोल्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी तरीके आप एग्रीकल्चर को कोई से भी है प्रोडक्ट ले उसमें करते हैं। वजह क्या है कि आपके जो रिस्क है ना वो बचे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में करते हैं और पर उसमें ही सारा पैसा लगा दिया, तूफान आ गया या कोई और चीज़ आ गई, आपका पैसा डूब जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है ना वहीं से निकलता है, लोग कर रहे हैं ये जो। और आपको जब मिसालें दे रही थे, हम वहाँ पे थे सईद अली सईद की, तो ये ट्रेनिंग पता नहीं 4 घंटे की थी और उसमें मिसालें बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये क्या जा रहे काम यहाँ आपको पता है काम है, फिर कम वक्त है, इसमें यही सबसे ज़्यादा रहता है। असल में हम इस चीज़ को जो है पूरी इंसानियत पर जब देखते हैं ना, हर इंसान के जहन में जरूरी नहीं आप 20% जैसे कला रह रहे हैं ना 20-80 नो, इसका बाकायदा जो है पैटर्न निकाला जाता है सेविंग और कंजम्पशन से, पूरी मुल्क की इकनॉमी का, किसी भी मुल्क की इकनॉमी में। उससे पता चलता है कि ये वाली जो कंट्री है, यहाँ के जो लोग हैं वो 20% करते हैं, 15% करते हैं, दैट इज़ MPC। अब MPC जो है ज़ाहिर है ये मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके माने यही है कि एक सोसाइटी जो 15% कर रही है, कोई सोसाइटी 20% कर रही है। हमारे यहाँ तो आप देखें ना, परचेजिंग पावर के माने ये है ना कि हमें तनख्वाह कम मिलती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अब उसमें इन्होंने बताया तो है डिमांड है, लेकिन दैट इज़ नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तमाम जो इनपुट्स हैं उनकी अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। और ये है थोड़ा सा एक्टिविटी पे आए। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 1 इज़ यू बजटिंग चैलेंज। इसके अंदर यू अर्न 100,000 PKR per month. Allocate your income across the following. You have to assume that आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है, and you have to allocate that income into the following areas. सबसे पहले फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो घर के एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आपने एलोकेट कर देना है इस 1 लाख रुपए को। देन वेरिएबल एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल ग्रॉसरीज, किसी मंथ आपने लेट्स से 30,000 की ले ली, किसी मंथ 40,000 की ले ली, किसी मंथ 15,000, एज पर द नीड ऑफ योर हाउस होल्ड। उसके बाद आप इतना अपने सेविंग को कहेंगे और इतना आप इन्वेस्ट करेंगे। मेक श्योर योर टोटल इक्वल्स 1 लाख आफ्टर बजटिंग। Reflect that did you save at least 20% and what would you cut if an emergency occurred. अगर emergency आ जाती है तो उन 20% में से आप कितना निकालेंगे। वहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। हाँ हाँ जी, 10,000 का सिगरेट। अच्छा, इनकी बात कर रही हूँ। तो आपने अपनी भी बजटिंग करनी है, साथ में इनकी भी करनी है बजटिंग। क्या भाई, और जिसके रेंट पे नहीं है, जिसके अपने घर है, वो क्या करेंगे? उनका कोई और खर्चा होगा। यूटिलिटीज है ना सर, आप हाँ। पे करते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे होगी, खाना पीना, कोई और खर्चा निकल आता होगा। टीवी का बिल, इंटरनेट का बिल। What if someone's very young? उड़ के जाए ऐसे बिल्कुल बैठी तेरे को जरूरत नहीं He's very rude. जरूरत नहीं चीज़ों की फिर को हिसाब किताब को रखना क्या, सॉरी, बिना अर्निंग के इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट प्लान तुम तो खुद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट प्लान को कहाँ अपनी एक्टिविटी दे दी पैसा बचाने की। तो आप थोड़ा सा वो कह रहे हैं कंट्रोल करें। इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं है। हाँ, सेविंग्स करनी है, सेविंग्स।
बस यही, हाँ एज्यूम करें और जस्टिफाई करें, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर हम सेविंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर जाएँ आप रेस्ट करें। हाँ अच्छा जी सर। अरे सर सर ये 2 एक्टिविटीज़ करा दूँ फिर बस? सेकंड हो गई एक्टिविटी। नहीं डिस्कस भी करेंगे ना। पहला है ना हो गया मिस। डन। क्या 1 लाख एज्यूम नहीं हो रहा आपसे? अब क्या करना है? अब क्या करना है इसके बाद? हाँ मुझे बताना है कि did you save at least 20%? मैं हाँ। लिखूंगी yes। और सही है। फिर मैं क्या बताऊँ कि वो जीव काटे। हाँ इन आउट ऑफ दिस 20,000 इसमें से तुम कितना रेडी होगी इमरजेंसी फंड में निकालने के लिए? अच्छा जी, ये तो किसी जमाने में आगे पढ़िए तुमने। मैं नहीं 1 लाख बन तो गया भाई, ये तो है। कितनी देर से बन रहे हैं सर्टिफिकेट? मैं इधर ही हूँ, सबसे पहले नहीं आया कुछ गया नहीं ये मिस्टर ग्रीन के हैं ह्यूमैनिटीज वाले। मैं तो बना ही नहीं कौन से अभी कहाँ से आए? बादल से निकलते हुए आए। यूं ही करके आ रहे देख उन्होंने इस चक्कर में एक्टिविटी करवा दी कि सर्टिफिकेट नहीं है। जा रहा हूं जा लिख कर दे रहे हैं भाई फिर। ये ईसी में जाएंगे। ये मैं जी। कैसे दूं? Are you serious? हाँ हाँ ये सबमिट होगा ईसी में। अच्छा इसी नाम पे हमें अप्रेजल देंगे, इनको जरूरत है नहीं। डॉक्टर शबीर ये कौन सी माइक्रो मैनेजमेंट करवा रही है हमसे? नहीं ऑनेस्टली इसी में प्रेजेंट करना है। हाँ 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 टाइम ही नहीं मिला पेपर। उसके भी वो 8 to 10 पॉइंटर्स थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। मेरी मेल में तो लिखे होते कि ये चीज़ें कवर होनी चाहिए उसके अंदर फाइल। सर आप आराम से जाएं। हाँ हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। आपने खाली बच्चों को बुलाया था? बड़े सबको बुलाया था, बड़ा आके चले गए थे। उन्होंने कहा इससे पहले सबसे बड़ा बच्चा है, हम चले जाएं यहाँ से। ये सही है सर, फार्म आपने लोग कैसे बोला? इनको बोल रहे आप ये डर गया डर गया जल्दी कर लें, यार। नहीं एज्यूम करना है, असल में नहीं कमाने 1 लाख। अरे मैं तो इसको सोच रही हूँ, और भी तो कुछ जरूर ना। सही है, चलो एज्यूम कर लिया हमने इसको। इसमें पैम्पर लिखो। हाँ आप सब कुछ लिख लेना, आपका खर्चा है ना वो। तो अभी आपने कोई एज्यूम करना है, तो एज्यूम भी तो पैम्पर लिखो। 1 लाख तनख्वाह एज्यूम करनी है, बाकी आप जो भी आपका खर्चा आपको लग रहा है आप लिख लें। पैसा डिवाइड करना है यार, अब क्या करेंगे? आपके पास सेविंग ही नहीं आ मैं रही। तो ऊपर चले नहीं गया आ रही। मेरा तो ऊपर जा रहा है, मेरे तो जो होती है वो भी जो भी फीडबैक है वो लिख दें।
तो जाके पूरा होगा। हाँ तो इट्स ओके, जो भी सिचुएशन है फाइनेंशियली लगती है वो लिख दो। बताओ आपको यार बाद में आपको लगता है मैं पढ़ूँ? हम भी लिखेंगे। इजी पड़ेगा। थैंक यू सो मच। वो कर दिया था ठीक, मैंने वॉइस नोट भेजा। सॉरी चेक करेंगे वो गए आपका इधर कैंसिल। तो फिर उधर ही बैठा है। जब कोई इन्वेस्टमेंट और सेविंग नहीं हो रही तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? व्हाट वुड यू कट इफ एन इमरजेंसी अकर्ड? जो आपने सेविंग नहीं, सो दैट मीन्स यू डू नॉट हैव एनी इमरजेंसी फंड्स। हमें भी नंबर नहीं, दैट मीन्स अगर आप कुछ सेव नहीं कर रही तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप सेव नहीं कर रही तो आपके पास इमरजेंसी के वक्त में कोई पैसे ही नहीं होंगे। बट आपने क्वेश्चन किया ना कि मैं इमरजेंसी के वक्त क्या करूं? एग्जैक्टली। इनके पास मामू का नंबर है इनके। और मेरे पास तो किसी को कॉल करूंगी, किसी से हेल्प लूंगी। एग्जैक्टली हाँ। हस्बैंड से ले लेंगे, बेटे से ले लेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसे वो देख रही थी कि वो ठीक खवातीन के पास वैसे बहुत ऑप्शन है। पेट्रोल 2 रुपए महंगा होगा, Thank लेकिन you. दूध वाले ने 5 रुपए बढ़ाया 1 लीटर। बोले मैं अपना ज़मीर मार के अपनी इसका फादर इन्वेस्ट इन्फ्लेशन ट्रैक मार सकता है। ये आपको जब एक साथ पता करो तो चलेगा। दैट्स द स्पिरिट। मिस्टर हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ तो करनी? रास्ते देखो कौन से दिखा रहे हैं आगे के। अच्छा आगे स्टेप 1 2 3 और है। यार जल्दी से दूसरे पे आओ ना यार। यार आप लोग बहुत टाइम लगा रहे बस फीडबैक कराना डायरेक्ट। खत्म हो गया। हैं। हाँ यार चाय भी नहीं वही तो फीडबैक करें। हो जाएंगे। रुखसार चाय नहीं आई? चाय समोसा बोला? बोला चाय हम ये सरकारी वाली नहीं होती, चाय वाली बेहतर चाय आएगी, लंबे पानी वाली नहीं होगी। अच्छा जी, बैठा है यार उसके बाद यार क्या feedback है? चाहिए हमें वाली सरकारी कॉफ़ी मंगाई थी मैं, कॉफ़ी जो कल आई थी। हमें सरकारी वाली चाय नहीं चाहिए। अच्छा क्या है फीडबैक? नहीं फर्स्ट उसका पहले फीडबैक 0% इन्वेस्टमेंट 0% सेविंग 0% इन्वेस्टमेंट एंड 20% सेविंग मैंने किया। वाई। मैं हाँ मैं साबित है। I save 20K in a month by transferring the amount to others. After सही। when I buy some gold at सही। the time of emergency, I just sell out the gold and सही है। Very good. हाँ, सही है। This is my मिस डॉक्टर अमरीन की सबसे अच्छा फीडबैक है, मिस प्लीज़ एलैबोरेट करें। But if I am saving to 20K in a month, तो by 20% of my salary हालांकि नहीं होती, but if I am doing this, then I transfer this amount to other। वैसे नहीं, खाली मेरे अपना एक रूल है कि मैं another account, 2 अकाउंट है मेरे, तो दूसरे अकाउंट में कर लेती मेरे हूँ। पास भी 3 अकाउंट है बस। नहीं तो उससे वो अकाउंट है वो मेरा सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज होता है। और इसमें ये होता है कि अब राइट नाउ गोल्ड इज ऑब्वियसली क्वाइट एक्सपेंसिव नाउ, बट ठीक है पहले हमेशा मैंने इन्वेस्टमेंट इसमें किए कि आफ्टर 1 ईयर आई बाय सम गोल्ड, कुछ ग्राम गोल्ड खरीद लिया तो इट विल, तो इससे आपकी सेविंग्स भी हो रही है और इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। इन्वेस्टमेंट भी हो गई एंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आई कैन इजीली बाय द गोल्ड। तो वो चीज़ आराम से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा सेकेंड एक्टिविटी इज द इन्फ्लेशन ट्रैकर। इन्फ्लेशन ट्रैकर अपनी अपनी करनी थी, तुम लोग उसके 1 लाख रुपए भी अपने उसमें करना चाह रहे हो। दोनों की मिला के लग बनती है ना। उसमें वो तीसरा भी आ गया, तीसरा हिस्सेदार। मेरे ख्याल से वहाँ पे 3 लोगों की मिला के बनेगी। अरे दो वही। पकड़ा दो, हमने किसी को अपने में डाला होता है। इन्वेस्टमेंट है, वो डबल हो क्या आ रहा है? डालो हाँ डालो बेटा, तुम कर ही नहीं रहा। नाम ही 20 किसने है। सर, वो इन्वेस्टमेट हुआ ना। Right. यार उसको तो अब जरूरत है इन्वेस्टमेंट की भाई, अब इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर निकाल के बाद वाला कमेटी से procedure इन्वेस्टमेंट होगा। आती है ना 10,000 सेविंग में आती है। देखो इन्वेस्टमेंट से वो चीज़ है जो ऐड अप कर रही है आपके पैसों में। आपको तो नहीं है कोई नो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मेरा भी सर मैं बताऊं ये जो ट्रेनिंग है ना ये वो बंदा जो डर्मेटोलॉजिस्ट के बिना पास दाढ़ी से जो है, ये हमें अली सईद ने दी थी वो ट्रेनिंग। दे सकते हैं। अभी सही जो आए थे हमारे पास, वो एक प्रोडक्ट बेचने आए थे, उसके बाद तक नहीं आया, वो बड़ा अच्छा वो कौन सा प्रोडक्ट बेच का है? अपना वो सेविंग अकाउंट का जो सिस्टम सारा। हम वापस इस पर आ जाएं। 5 बजे छुट्टी करनी है सबने? यार 5 बजे तक होगा। नहीं उससे पहले इन्फ्लेशन ट्रैकर। चूज 3 कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, पेट्रोल एंड शुगर। स्टेप 1 फाइंड द करंट प्राइसेस। ठीक है, आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, सॉरी 3 कॉमन लेनी है। उसके बाद आपने उसकी करंट प्राइस देखनी है। स्टेप 2 वेयर व्हाट वर द प्राइसेस 5 years ago। 5 साल पहले कि आपका क्या अंदाज़ा है उसकी क्या प्राइस होगी। एंड कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज हम करते हैं न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय
ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100 परसेंटेज के लिए इंटू 100 ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. हाँ डिवाइडेड बाय न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई परसेंटेज है ना मल्टीप्लाई. अभी प्राइस है मिल चल रहा है 200. 3 कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की आज की प्राइस आपने निकालनी है और 5 साल पहले उसकी कितनी प्राइस थी वो एज्यूम करना है. मैंने मिल्क कार्टन की रफली लगाई है. मिल्क कार्टन वॉज टुडे प्राइस इज 3600 एंड द ओल्ड प्राइस वॉज 1800 approximately. After the formula it means that 100% inflation है. क्या आंसर क्या आया इसमें? 100%. वो तो आपने एज्यूम किया ना दोनों प्राइसेस को. हाँ नहीं वो तो ऐसे है करंट 3600 ही है. सही है. ओल्ड जो है अच्छा कार्टन की लगाई आपने. हाँ तो 100% प्राइस हो गया 5 सालों में. हाँ अच्छा सेकंड वाला जो हमारे इन्वेस्टिंग है इस तरह आपने 3 प्रोडक्ट्स लेनी है 3 हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लेने हैं. चलें एक पे ही कर लें. खैर अच्छा अब 5 साल पहले और पेट्रोल पहले से आती है 150. मेरे तो मिल्क कार्टन का मेरे ध्यान में था. तो 5 साल पहले कौन हमारा आदमी कार्टन 3600 का आ रहा है. मैंने पूरा वाला लिया. पेट्रोल का मुझे अभी 5 साल पहले क्या था पेट्रोल चल रहा. अभी तो आजकल 270 है. 150 सही है 150 सही है. उसका और शुगर में 180 5 साल पहले 60 रुपए की होती होगी 80 रुपए की 140 मार लेते चल तेरी में भी शुगर में 90 चीनी का मुझे 55. चीनी 180 है 180 190 पर केजी और अभी और 60-65 थी शायद पहले. 60-65 उसी पे लड़ाइयाँ होती रहती थी जहाँ तक मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई. और पेट्रोल कितना है 5 साल पहले? 150 तो मैं क्या लेती है और थोड़ा शुगर तो देखें 50 रुपीस थी. यही हो सकता है मैं कमेंट नहीं कर सकता. 150 डाटा बड़ा बता रहे मिसेज जो आपने कैलकुलेट पर्सन इज इंक्रीज बोला ये फॉर्मूला लगाना है. न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड. हाँ फॉर एग्जाम्पल मिल्क की न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100 परसेंटेज है ना. हाँ मल्टीप्लाइड बाय 100. जी मैं 100 रुपए 100 से आपको इस चाय का बोला हुआ था कॉफ़ी का. वालेकुम अस्सलाम. कॉफ़ी का बोला हुआ था बहुत देर पहले. जीशान साहब को बोला था 1-1:30 बजे बोला था. चीनी क्या चल रही है आजकल? पेट्रोल में आपने 180 आप बोल दो उनको याद दिला दो. जी 1:30 बजे बोला था. सिर्फ चाय थी. निशान साहब को उन्हें पता है. आप जाके याद करा दो. बोले मुझे आज 180 है. अभी नहीं वो नीचे ऑफिस में भी आए थे मुझसे कंफर्म करने कि आपकी और मिस वफा की एक ही है या अलग अलग है. नंबर दो बस ये लोग हैं. हाँ कितने ग्राम की कितने ग्राम की नीचे बनवानी पड़ेगी. तो बेटा मैंने तो बहुत देर पहले का बोला हुआ है. वो 2 बार गई है बोलने के लिए और मेरी उनसे पहले बात हुई थी 1-1:30 बजे. मेरा नंबर नहीं है आपका. मुझे फोन कर देना या मैसेज हमारे पास अब आ गया. बॉस है ना बॉस से मेरा नंबर ले लो. बेटा सेटल कर लो जो भी है. यहाँ खड़े होकर बात करने के बजाय आप बोल दो उनसे. क्या कह रहे हो? नहीं तो आंसर क्या है 0% 100%.
नहीं देखिए, ये प्राइसेस कुछ ऐसे हैं कि ये 110 है और ये 220, तो ठीक है। इसको अगर हम माइनस करते हैं 110 बच रहा है। सही है। तो 110 डिवाइड बाय 110 तो 0 तो दैट मीन्स 100% राइज हो रहा है, क्योंकि देखो डबल हो रही है ना, 110 से डबल हो रही है 220। आंसर सही है इसका मतलब। दिस एक्सप्लेन्स कितनी अच्छी मैथ्स है। डन हो गया? हो गया। सर मुनीर को बुलाते हैं जिनका काम है शायद भाई नहीं। 66.66 है पेट्रोल का आंसर। यही है, बस यही जो है। आए थे वो चले गए, शफीक साहब को उनकी टेबल पे पहुंचा हाँ, डॉक्टर शफीक उनकी टेबल पे दे दी। वरना फिर पर्सनल हो जाएंगे। सही बात है। 1 2 3 सर तलहा हैं, वो उठ के गए हैं किसी काम से। 1 2 3 4 5 6 7 इसी बहुत मजे का प्रॉब्लम है। 12 हम लोग हैं और एक डॉक्टर शफीक थे। 12 ले आए आप। मैं शीशा नहीं पी रही, कॉफ़ी भी नहीं। 12 कितनी महंगी होगी है? और हाँ सॉरी 13 शुगर का आंसर क्या है? अगर आपको बोलिए तो 3400 का हो गया भाई। शांति शुगर का आंसर क्या है? बॉटल शुगर का आंसर कॉफी का अभी मैंने बताया हाँ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है कॉफ़ी। 76%। वो यार 185 और मतलब 1-1.5 साल पहले मेरे ख्याल में 600 या 700 कुछ ऐसी आती थी वो। हाँ 180 हाँ हाँ उसको बताया पुरानी प्राइस लिखी है हाँ वो ही 36 माइनस। सारी इम्पोर्टेड आइटम्स कहीं के कहीं पहुँच शुगर 176%। मैडम हो गया हमारा दूसरा हो गया। शुगर का आंसर भाई बचपन में पिया था हमारे टाइम। नहीं, आंसर क्या है परसेंटेज? वो तो डिफरेंट होगा ना जो उन्होंने एज्यूम किया। यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है। नहीं तो 65 बताया तुमने। कैलकुलेटर होता है इसके लिए। इसी लुइस पे बोल रहे देखिए। चैट जीपीटी क्या आंसर आया? 2+2 चैट जीपीटी से पूछा जा रहा है। कैलकुलेटर वो कह रहा है 5। वो इसीलिए तो उसको दिखा रहा है कि 5 क्यों बोल रहा है। सर फहाम, आपके यहाँ चीनी का रेट क्या था? मैडम मेरे पास चीनी का रेट था 55 55। और करंट 180 है। 180 आंसर क्या है? मुझे 50 को लिखा है। 227। तुम ज़्यादा सस्ते दौर में चली गई हो 5 साल से पहले। 2 साल आ अगर इससे गए। पहले अगर हम अब तो बचपन में चले गए तो 1 रुपए का टिकट था भाई हमारा तो वैसे आपने बस का फ्रेशर किराया। डाल दी थी इसके अंदर, फ्रेशर की प्राइस। हाँ फ्रेश अप बिल्कुल। Actually, डन हो गया सारों का। हो गया। 4 activities उसके नीचे है व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट इन्फ्लेशन। कुछ समझ आया इससे कि हुआ क्या? 100% बिक गए। हाँ नॉर्मली 100% से ज़्यादा ऑन एवरेज एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है। अच्छा जी, थर्ड एक्टिविटी पे आ जाएं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पजल। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज़ दैट यू रिसीव 1 लाख टुडे। ठीक है, आपको 1 लाख रुपए आज मिल रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन इज़ दैट यू गेट 110 आफ्टर 1 ईयर। 1,10,000 आपको 1 साल बाद मिले। आप इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे? अभी क्यों मिल रहा है? हमें 10,000 का टिकट आज वाला। आज वाला क्यों? क्योंकि जो टाइम आई है मुझे पे देख भी इट्स हाँ। 10,000 हाँ, सो कैन यू कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला कि ये 1 लाख जो आपको आज मिल रहा है ये 1 साल के बाद कितना वर्थ होगी इसकी? कैलकुलेट करो। हो सकता है 1,10 से भी ज़्यादा हो। प्रेजेंट वैल्यू इज 100। समझ आ रही है? मैडम जी जी आर क्या है? ये तो कर लेगी ना, फाइनेंस ही की है। इसीलिए हमारे पास हाँ। वो है। ये भी तो आपको है। तो बस एक अच्छा, वो बोल रहे हैं एज्यूम द एवरेज इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज 8% एनुअली। क्या तुम क्या पूछ रहे हो? यहाँ पे टी क्या होगा? हाँ, टी क्या है? कितने साल बाद मिल रहा है आपको? 1 to 1। हाँ। मैं मुझे बताने वाला रिसीवर जो है 1 लाख रुपये हमें क्या है रिसीवर हम ये वाला मैंने देखें, 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ये कि आपको 1 लाख रुपए आज मिल जाए, दूसरा ऑप्शन है आपको 1,10,000 रुपये अगले साल मिले। ठीक है, आपने इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे? अब आप ये कैसे बता सकती हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा वर्दी इन्वेस्टमेंट कौन सी है, जब आपको ये पता हो कि 1 लाख जो मुझे आज मिल रहा है वो कल कितना होगा? क्या इन 1,10,000 से ज़्यादा होगा या इससे कम होगा? तो इससे आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
हाँ क्या आया आंसर क्या आया? 1,09,000 नहीं नहीं, में से 8% है, मीन्स 0.08 होगा। 8% है, हाँ 0.08 होगा। अच्छा, कंपाउंडेड एनुअली 8% है, दैट मीन्स 0.08 होगा वो। हाँ 100% से मल्टीप्लाई करना है। जी, लिखिए फ्यूचर वैल्यू क्या है? 1,10,000 फ्यूचर वैल्यू आ गई 1,10,000। 1,08,000 एग्जैक्टली। पीवी हो गई 1,00,000। ठीक है, मीन्स 2,000 के लिए, मीन्स के इस 1,00,000 जो आपको आज मिल रहा है वो अगले साल 1,08,000 होगा। और ऑप्शन बी है कि 1,10,000 आपको अगले साल मिल जाएगा। तो बेटर ऑफ किस में है मिस ईशा? मेंटल हेल्थ के हिसाब से नहीं आंसर देना है, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। हमें तो आज मिल जाए, जो भी है अभी अभी मिल जाए, कोई कभी कल हम हो ना हो। वो जो यू है ना, वो इशारा करने का ऊपर पावर और ठीक है the number of times which is like 1. which is one। एक ही बना है 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। One power of यार वो मोबाइल उसी चैट जीपीटी को मैं मोबाइल के बारे में 1,00,000 को मल्टीप्लाई 1 किया तो ब्रैकेट खुलेगा कैसे पहले? ओ माय गॉड, मिस आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करने कोई नहीं कर रहे 1 प्लस r रेट है। बॉडमस 8% सर रेंज को बुलाना पड़ेगा बहुत मुश्किल है, बताओ क्या नहीं आता। देखो 1 प्लस हाँ हमारा 0.08 08 है और हमारा 1 8% एनुअली हो रहा है ना, तो 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ क्यों 1,10,000 लिखा है? नहीं आएगा यहाँ पे नहीं, नहीं आएगा ना, हम ये फाइंड कर रहे हैं ना। ये हम फाइंड कर रहे अच्छा x डाल दे यहाँ पे। हैं। हाँ एक्स्ट्रा। तो वो तुम द कॉन्सेप्ट इज कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है? तुम 1,00,000 आज ले लो या 1,10,000 कल ले लो। सपोज करो तुम चूज करते हो मैं 1,00,000 आज ले रही हूँ, तो ये 1,00,000 अगले साल कितना बनेगा? 1,08,000 बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? 10,000, तो उसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। 100,000 110,000 की जगह ना x लगा। हमारा फाइनल जो आंसर हमने x से निकाला। फाइनल हमारा आंसर है 108। मिस इनका 8,000 आ रहा है। नहीं 1,08,000 आ रहा है। 1,08,000 1,08,000 है तो बस अब बैठ के हमारा आंसर जो है वो कहाँ से 1,08,000 आ रहा है? हाँ हाँ, सो ऑप्शन बी इज मोर फीजिबल। हो गया हो गया वो शाम से पहले विचार इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल डन। मेरा यही क्वेश्चन था जब आप कह रही थी ना इतने फंड दिए उनको, वो भी तो कुछ पूछते होंगे कि कितने पैसे हैं। 20,000 लेके चले जाओ। अपना रिस्क टॉलरेंस बताएं आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अभी तो मैं इसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अपना रिस्क नहीं ले सकते। हो गया सबका? मिस मैं कंजर्वेटिव मीसम हो गया? हो गया सबका? सही। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न, identify your risk tolerance and ideal asset allocation. Pick the risk appetite. ठीक है, आप कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करोगे, मॉडरेटली करोगे या एग्रेसिवली करोगे? मैं एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव। ओके ठीक है, समझ गए। You just have to justify that why would you choose to be extremely conservative. We can't afford to lose whatever we Based on your choice, fill in the percentage allocation. 100% में से आप बॉन्ड्स में कितना एलोकेट करोगे? स्टॉक, रियल स्टेट, कैश और क्रिप्टो। ये जो 20% हमने बताया था उसमें से करना है। हाँ, नहीं 100% है अभी आपका जो बॉन्ड्स एंड स्टॉक। वो जो 20% है ना, वो भी आपके माइंड में 100% सेविंग है। ठीक है, उसको आप 100% सेविंग ये नहीं आपने 20,000 की भी इन्वेस्टमेंट करेगा। यार परसेंटेज डिवाइड करनी है, अमाउंट नहीं, परसेंटेज रखना है। 5,000 क्रिप्टो में चले गए 5,000 5,000। 20,000 जो बचाए थे उसका तो 100% भी होगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यार आप समझ नहीं रहे कि 20,000 Thank you so much. 100% आप उस 20,000 को 100% कंसीडर करें। अच्छा मैंने वो भेजी थी एनरोलमेंट स्टेटस भेजे ना, मैंने जो एनरोलमेंट स्टेटस भेजा था आप मैम ने मांगा था ना एनरोलमेंट स्टेटस। हाँ, वो मुझे सशराज से भी भेज दिया था। थैंक यू मिस। रियल एस्टेट होगा। मिस ये लेती चाहिए।
या आपके डेस्क पे पहुंचा दो। ऐसे कहते हैं गोल्ड तो आजकल बहुत बड़ा आदमी चल रहा क्यों ऊपर जा रहा है यार? पाकिस्तान में कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ ऊपर जा रहा है ना? रात जी सॉरी, नीचे चला गया मैंने ले जाता आप बताएं क्या होना चाहिए सबसे? वैसे तो बहुत Real estate. पाकिस्तान में तो रियल एस्टेट है रियल स्टेट। तो 20,000 में तो कोई मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा बैठा सिर्फ परसेंटेज बतानी है लिखनी अमाउंट नहीं है। कि आउट ऑफ 100% आप सबसे ज़्यादा किस में इन्वेस्ट करेंगे। 50,000 भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है। आप हमें सेविंग भी बता रहे हैं, ये रिवील नहीं करनी है। लारे I'll say 50% में real estate करना 30% bond क्रिप्टो तो मैं बिल्कुल नहीं करना क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ मनी मार्केट में सुना है अच्छी चीज़ है सॉरी। खुद करो ना अपना हर काम दूसरा करते तो उसके 1 लाख भी तुम्हारे 1 लाख भी उसी को मिलने चाहिए। सारे काम उसने किए हैं तुम्हारे। मिले तो भी तो ये आपका सर आपको लगता है इस शेयर में 1 लाख मिलेंगे? रिकॉर्ड हो रहा है। मिस योर सर वही है बस आपकी वो टर्म क्या थी? म्यूचुअल फंड्स। स्टैंडर्ड बता म्यूचुअल फंड्स नहीं, वो आपने डाइवर्सिफिकेशन से कुछ किया था। टर्म क्या थी वो? नेवर पुट योर ऑल द एग्स इन वन बास्केट। उसके क्या था? डिवर्सिफिकेशन। आई बिलीव इन सईद और असगर का भी तुम्ही को दे रही हूँ सर्टिफिकेट। मैंने नहीं करवाया मैं सिम से मेरा हुआ ही नहीं है कुछ भी नहीं किया तुमने? पहले एक्टिविटी आई ही नहीं यही तो बता रहा हूं शान से वेलकम। रमीज चले गए थे। इसमें लिखो दिस मेक्स व्हाट गोल आर यू पढ़ोगी तो नहीं ये उधर इसी में सबमिट होगा। यस यस ऑनेस्टली, और रिकॉर्डिंग भी जाएगी। वो हम खुद करेंगे। अच्छा पहले तो Once you are done with it, please fill the feedback form as well. एक ग्रुप पिक्चर ले लेना, नहीं कि उसमें लगे कि वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। नहीं बस थैंक यू हो गया। अभी वो कर तो लें, उसकी एक पिक्चर ले लें, एक्टिविटी की पिक्चर ले लें, ये कहना चाह रही हूँ। अच्छा ये तो मैं कुछ भी नहीं देती। अच्छा मैं बताती हूँ, मैं ये मैंने अपने मंथली एक्सपेंसेस लिखने हैं। क्या थी फर्स्ट एक्टिविटी? हाँ 25,000 जाती ट्यूशन 15,000 जाते फिजियोथेरेपिस्ट के पास। दिखाएं। उसने कहा बजट तो अपसेट चल रहा है, बाल सेट होने जाएंगे। अच्छी आई। और एक उस वाले ग्रुप के लिए वो जो हाँ फोकस, वो सबसे ज़्यादा काम वही कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा काम वही लोग कर रहे हैं। डन। तभी तो आपको नोट किया
चलिए, what could be improved? कौन से वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ये नहीं बताया आपने। आपको फेवर नहीं करना है हमको इसमें। नहीं ऑनेस्ट ओपिनियन दें। ऑनेस्ट हमने कभी नहीं दिया, मीडिया वाले हम लोग। सर लेकिन हम जाएंगे इग्नोर कर दीजिए अगर कहीं ऐसी चीज गई हो तो। अरे सर आप बेफिक्र होके मैं रेडी रहूंगी सर। सर ओके ठीक है सर। पर्सनल 45 हस्बैंड बहुत रियलिस्टिक बनाया है। किधर है? यहीं पे वहाँ पे वहीं पे एक साथ ही बना। सबके इंडिविजुअली होगा कि मैंने तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। बाद में दे बस ये टुंटना पीछे लगा दूँ मैं आपको। अरे रहने दें यार, छोड़ दें, अब तो ख़त्म हो गई। इसको बाइक पे उतार देना। अब तो लगा दिया मैंने। बता दूँ बाद में। थैंक यू सर। इमारत की ट्रेनिंग थी तो ना उन्होंने सर्टिफिकेट देना था सर डॉक्टर शफीक को से, तो नहीं वो करके पकड़ रहे हैं डॉक्टर शफीक लेने कह रहे हैं ये आप मुझे दे रहे हैं या ले रहे हैं। थैंक यू बोलना। सही है, ठीक है, ये तो निकालो। अरे थैंक यू इसमें तो बोले यार वो नीचे जा रहा है नेक्स्ट। हाँ अभी एजेंसी लिखेंगे तो निकाल लेंगे। थैंक यू। यार प्रोजेक्टर बंद कर दो। डन, डन मैडम। सबका हो गया? मुझे ये प्रेजेंटेशन जो है ना आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्योंकि ये डन है सर, प्रोडक्शन में ऐड हो। डन है। मेरे सजेशन ये है हाँ। कि आपके मेरी जब आई डोंट नो इफ आई मिस इट और नॉट कि नेक्स्ट डे से फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड जैसे डायरेक्शन तो क्या अच्छा अगर आप इस पे करना चाहते हैं तो अलग अलग ये कांटेक्ट नंबर है ये वेबसाइट ओके सी सही है, ठीक है। I'm explaining this because what I wrote might not have conveyed this. Maybe some real-time context can be provided. So Say that's what I meant by that. सही। By the way, you will get. I just need your 2 more minutes. Misam? Get a bonus? Huh? Yeah, you will get a bonus. Bonus in terms of I'll share the training material and the manual of that training with you, all of you, in the email. ठीक है, जो invitation की email आई थी, in response to it, I'll send you the manual and the PPT that was the training material basically of the actual training. Thank you so much everyone. Thank you for coming. I know all of you have very busy schedules, but still making time for this training means a lot. Thank you so much, and I really hope that it was useful in some way or another. And I would really appreciate if you implement the key takeaways of this training in your personal lives also. Thank you so much.